تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں رقم ہے، لکھا ہوا ہے، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جنم کا لنگڑا۔ کون سا لنگڑا؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لنگڑے کی مانند ہیں کہ ان کو کوئی کہے تو ہیکل میں جاتا ہے۔ اس کو بھی، اس لنگڑے کو بھی اٹھا کر ہیکل میں چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اس کا ہیکل میں آنے کا مقصد دعا کرنا نہیں تھا۔ اس لنگڑے کا ہیکل میں آنے کا مقصد خدا سے مانگنا نہیں تھا۔ اس لنگڑے کا مقصد خدا کے حضور میں جھکنا نہیں تھا۔ اس لنگڑے کا مقصد تھا بزنس، کمائی کا ذریعہ، روپیہ پیسہ لوگوں سے کمانا۔ اس نے ہیکل کو بزنس سمجھ کر اپنا بزنس وہاں پر چمکایا کرتا تھا، اور لکھا ہے کہ جنم کے لنگڑے کو، اور دیکھتے ہیں واضح طور پر لکھا ہے کہ لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کو لا رہے ہیں، وہ جنم کا لنگڑا ہے، وہ دونوں پاؤں سے نہیں چل سکتا تھا۔ لوگ اس کو لا کر وہاں پر وہ لوگوں کو کہتا کہ بھائی پلیز مجھے ہیکل تک چھوڑ دو۔ ہیکل مین خدا کا گھر، جہاں پر خدا کی ورشپ ہو، جہاں پر خدا کی حمد ہو، جہاں پر خدا کی مہما گائی جائے، جہاں پر پریزنس آف گاڈ ہو، جہاں پر خدا کی حمد کی جائے، اس جگہ کو ہیکل کہتے ہیں۔ اور یہ جو لنگڑا ہے یہ جنم کا لنگڑا ہے۔ اس کو ہیکل میں آنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ میں اپنی کمائی کر لوں، میں اپنا بزنس کما لوں، میں اپنا روزگار چلا لوں۔ اور آج بھی کچھ ایسے ہی ہے، بہت سارے لوگوں نے ہیکل سے، چرچ سے اپنا بزنس چمکایا ہوا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اور یسوع سے جب ہیکل میں داخل ہوئے تو وہاں پر صرافوں کو اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پر تجارت کا کام کرتے دیکھا، اور یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا، مارا اور کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا اور تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ صادر ہوئے کیونکہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ My house shall be called house of prayer۔ اور جب 2018 کے اندر خدا نے مجھے
मेरे साथ बात की। ये मेरा गवाही देना बनता भी नहीं है, लेकिन शॉर्टकट क्लोज करूंगा। तो 2018 के अंदर सुबह का टाइम था, खुदा ने मेरे साथ बात की, उठ अपना मैं तुझे बरकत देता हूं, उठ और मेरे लिए एक घर तैयार कर। और खुदा ने मुझे फिर यशाया 56:7 खुदा ने मुझे आयत दी, और उसमें लिखा था कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। और मैंने सोचा जब मैं चर्च बिल्डिंग तैयार करूंगा तो फिर खुदा ने मुझे ये आयत दी है, और इस आयत में लिखा है माई हाउस शिल बी कॉल्ड हाउस ऑफ प्रेयर। तो मैंने इस चर्च बिल्डिंग का नाम हाउस ऑफ प्रेयर रखा, और खुदावंद की शुक्रगुजारी कि आज ये हाउस ऑफ प्रेयर चर्च खुदा के फजल से तैयार हो चुका है। आमीन। तो अजीज भाई और बहनों, ये जो लंगड़ा है ये जन्म का लंगड़ा है, ये जन्म से चल फिर नहीं सकता था। इसको हैकल पर छोड़ दिया करते थे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो जन्म का लंगड़ा है ये इस तरह से हमारे कलीसिया के भी कुछ हालात बन चुके हैं कि उनको हैकल के लिए कॉल की जाए, उनको हैकल के लिए बुलाया जाए तो आते हैं, हैकल के लिए कहें तो आते हैं। तो कई तो मैंने कहते पर सब तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं, पर सब आ रहे, बस कॉल की थी पाजी साहब वी आर कमिंग, बस हमें ये आंसर मिलता है प्लीज कम एंड ज्वाइन। मैं मैसेज करता हूँ प्लीज कम एंड ज्वाइन, तो लोग आगे से मुझे रिप्लाई करते हैं वी आर कमिंग, बाद में कुछ भी नहीं। तो ये जो जन्म का लंगड़ा है इसकी मुलाकात किसके साथ हुई है? पतरस और यूहन्ना के साथ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, पतरस और यूहन्ना ये दोनों हमें बाइबल मुकद्दस में अक्सर इकट्ठे नजर आएंगे, ये दोनों हमें साथ साथ नजर आएंगे। और पतरस जो है ये उम्र के लिहाज से तमाम रसूलों में उम्र सीधा है, बुजुर्ग है, और जो यूहन्ना है ये तमाम रसूलों में से सबसे उम्र में सबसे छोटा था, यंग मैन था। और ये जो यंग मैन यूहन्ना है ये अक्सर पतरस रसूल के साथ रहा करता था। पतरस रसूल ही इज नॉट गुड ग्रेजुएट शख्स, ये कोई इतना पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, लेकिन यूहन्ना बहुत पढ़ा लिखा शख्स था। और पतरस और यूहन्ना ये तीसरे वक्त, तीसरे पहर हैकल में दुआ के लिए जा रहे हैं। कौन से पहर? तीसरे पहर। और दिन के 4 पहर होते हैं। कितने? 4 पहर होते हैं। एक सुबह 6 से 9 बजे तक, दूसरा 9 से 12 बजे तक, फिर 12 से 3 बजे तक तीसरा पहर, और फिर 3 से शाम 6 बजे तक चौथा पहर। इसी तरह से रात को भी यही सिस्टम होता है। तो अजीज भाइयों और बहनों, ये तीसरे पहर, इससे मुराद ये है कि वो लगभग 2 से 6 के दरमियान जो है वो हैकल में जा रहे हैं, और उन्होंने देखा कि एक रास्ते में जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ है, और वो भीख मांग रहा है। वो जितने भी हैकल में आते हैं, जितने भी जाते हैं, उनसे आने जाने वालों से भीख मांगता है कि मुझे कुछ दे, मुझे कुछ ना कुछ लाज में दे। और जो भी वहां से गुजरता था उसको कुछ ना कुछ दे के जाते थे। लाइक कोई 10 रुपए देता, कोई 20 देता, कोई 50 देता, कोई 100 ही दे देता, तो कोई तो हरा नोट ही दे के उन्हें चल जाते थे। और ये जो है, ये जन्म का लंगड़ा जो है, ये इसी तरह से जब उसने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी है तो हाथ मिलाकर उनकी तरफ उनसे भीख मांग रहा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी तरफ देख। किसकी तरफ देख? हमारी तरफ। अब उसकी सोच में, वो जो लंगड़ा है उसकी सोच में ये आ गया कि ले भाई इन्होंने बड़ा स्पेशल क्या, हमारी तरफ देख। ठीक है, उसकी सोच में आ गया ले भी अज भावे नीला नोट ही भावे दे जान मैनू, भावे वो 5000 वाला ही दे के जावे। हो सकता है इन्होंने कहा है कि मेरी तरफ देख, हो सकता है जी गड्डी ते नंगे ने गड्डी मैनू दे जान, हो सकता है कि ये मैनू अपना घर दे देन। उसके लंगड़े की सोच में बहुत कुछ आया, वो बहुत कुछ सोच रहा है। उसकी सोच में यह भी आ रहा है कि हो सकता है ये मुझे बहुत कुछ रुपया पैसा दे। और यहां पर लिखा है 5वीं आयत में,
वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया है। उसका सारा फोकस, उसका सारा ध्यान जो है वो पतरस और यूहन्ना पर लग गया है। और जो जितने मुसाफिर वहां से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो किसी की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि जब पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारी तरफ देख, तो वो मुतवज्जे हो गया है। अब पतरस ने जब कहा ना, सोना और चांदी मेरे पास है नहीं, पर जो कुछ है वो मैं तुम्हें दिए देता हूं। अब वो लंगड़ा हैरान हो गया कि लै भी ये तो गल है कि ना इहदे को सोना है ना इहदे को चांदी है, इहदे तो मुराद है इन्हें सोने चांदी तो वड्डी शै को दे के जानी मैनू। तो आजकल के दौर में सोने से बढ़कर कुछ चीज है कोई? तो अजीज भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहता हूं, ये जो लंगड़ा है ये सोच रहा है कि सोने चांदी तो वध कोई शाय होनी मेरे को, कुछ ना कुछ मेरे पास ज्यादा आने वाला है, कुछ ना कुछ ज्यादा मिलने वाला है। और वो ज्यादा और मुतवज्जे हो गया, पतरस और यूहन्ना की तरफ और मुतवज्जे हो गया है। और पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो कुछ है वो मैं तुम्हें दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और लिखा है कि उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसके पांव और उसके टखने उसी वक्त मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया। अब मैं आपको बता भी सकता हूँ कैसे कूद कर खड़ा हुआ होगा। क्यों सलमान, कैसे कूद के खड़ा हुआ होगा? दस सकना है आपको? पता है आपको? नहीं, कोई इंज बैठा किंज भला इंज बैठा भीख मंगन दिया, मुझे कुछ दे दे। जितने भी आने वाले उनको कहता मुझे कुछ दे, मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, मेरे पास वसाइल नहीं है, मुझे कुछ दे। और जब पतरस ने और यूहन्ना ने उसे कहा हमारी तरफ देख, तो बाइबल में लिखा है वो और उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर है। और उसने कहा कि सोना चांदी, पतरस ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर जो कुछ है वो मैं तुम्हें दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। उसका जब हाथ पकड़ा, थोड़ा सा उठाने की कोशिश की है, और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि वो कूद कर खड़ा हो गया। वो उसने ठीक ठाक जंप लगा लिया है, उसने कूदा है, वो एकदम से उठा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो कूद कर और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। कहां पर गया? बहुत सारे लोग हैकल से बाहर हैं, लंगड़े हैं, हैकल के अंदर इंटर नहीं हो रहे हैं, चर्च के अंदर नहीं आ रहे हैं। वो आते तो हैं लेकिन बुनियादी तौर पर लंगड़े हैं। तो ये जो है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, इस लंगड़े की, इस जन्म के लंगड़े की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब इसके पांव सलामत हुए, जब इसके टखने मजबूत हुए, तो इसने जाकर अपनी वालदा को नहीं बताया कि अम्मी जी देखो अब मेरी लत्तां ठीक हो गया, नहीं, बल्कि जे शादीशुदा होंदा ते अपनी बेगम नूं जाकर दसना ये लोग के वेख मेरी लत्तां मजबूत हो गई। वालिद नूं नहीं दसिया, रिश्तेदारां नूं नहीं दसिया। जहां से उसने शिफा पाई और जिस के वसीला से पाई, वो जहां पर जा रहे थे उनके साथ खुदा के घर में गया है, वो किसी और के पास नहीं गया। तो अजीज भाई और बहनों, हम जब शिफा पा लेते हैं इस जन्म के लंगड़े की तरह, तो हमें चाहिए खुदा के लोगों के साथ और खुदा की हैकल के साथ जुड़ जाना। बहुत सारे लोग खुदा के हुजूर में अपने मकासद पूरे करते हैं, खुदा को कहते हैं खुदा तू मैनू घर दे दे, खुदा सुनासी देखी मैं फिर तेरे घर दे नाल जुड़ा रवांगा, खुदा तू मैनू मोटरसाइकिल दे दे, खुदा मैं तेरी हैकल में जाऊंगा, तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं खुदावंद तवार की इबादत भी नहीं छड्डांगा। बड़े अहद कर लेंगे थे, खुदा फिर उसके मकसद को पूरा कर देता है। तो जब खुदा पूरा कर दिंदा है तो बाद विच पता ही नहीं हुंदा खुदा कित्थे आ, खुदा दा घर कित्थे आ, बस ठीक है साडा काम होना सी हो गया। तो बहुत सारे लोग मुझसे दुआएं करवाते हैं चर्च में आकर, लेकिन जब उनके मकासद पूरे हो जाते हैं
وہ پھر کبھی مجھے چرچ بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ میرا مقصد ان کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم نے جنم کے لنگڑے کی طرح جب اس نے شفا پائی تو وہ خدا کے گھر میں داخل ہو گیا ہے دعا کے لیے، تو اسی طرح سے اگر ہمیں خدا نے شفا بخشی ہے تو ہم بھی خدا کی ہیکل کے ساتھ جڑے رہیں۔ سو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے، آمین۔